नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं बलवीर कश्यप, खंड शिक्षा अधिकारी राजौंद, एक बार फिर पुनः मेरे यूट्यूब चैनल एडू मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल के माध्यम से हम प्रशस्त ऐप के बारे में, थोड़ी सी गाइडलाइन के बारे में जानेंगे और ताकि सभी हमारे स्कूल मुखिया और टीचर इस वीडियो के देखने के बाद परिचित हो जाएं कि इस ऐप के माध्यम से हमें किस प्रकार काम करना है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो संजय कुमार जी भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरफ से ये सचिव हैं। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है, जो कि 7 मार्च 2023 को हुआ है। तो इसमें माननीय सचिव महोदय का एड्रेस जो किया है, डियर कोलीग्स, एज यू ऑल आर अवेयर दैट प्रशास्त ए डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग चेकलिस्ट फॉर स्कूल्स मोबाइल ऐप covering the 21 disabilities including the benchmark disabilities as per the RPWD Act 2016 was launched on 6 सितंबर 2022 during शिक्षक पर्व 2022. This initiative facilitates early screening leading to certification of children with special need (CWSN) as per the provisions of the Samagra Shiksha. It is a small but significant step towards realizing the vision of the equitable and inclusive education of NEP 2020, RPWD Act 2016, RT Act 2019 and Goal 4 of the Sustainable Development Goal. In the Persist app, teachers and special educators are required to register and create login accounts which are thereafter required to be verified by the principal headmaster of the school concerned. Only after the verification process, teachers of special educators would be able to use the app as a screening tool for identifying CWSN children. It is observed that the state UT-wise progress of the registers as well as verified users of the Prasast app is very poor, which in turn is hampering the early screening and identification of CWSN and their certifications. The state UT-wise details of the number of teachers and special educators as per UDICE plus 2021-22, and against this, the progress of the registered and verified teachers and special educator in Prasast app is enclosed at Annexer 1 for state UTs requiring orientation in the use of mobile app. May contact Dr. Amrendra P. Beheraji, Joint Director, Site NCRT at jointdirector@site.nic.in. In addition, under Samagra Shiksha, the annual identification camps are required to be conducted at block level for schedulation, followed by appropriate educational placement based on the assessment. However, it is noticed that the state UT-wise physical progress of the identification and assessment camps for CWSN for the year 21-22 and 22-23 is much less than estimated, that is below 50%. The state UT-wise progress report is enclosed at Annexer 2. I would deeply appreciate it if you could personally look into the matter to ensure maximum coverage of children for early screen of CWSN through Persist app, as well as for timely conduct of annual identification and assessment camps at block level so that aids, appliances, assistive devices could be made available to the children within the academic year. Moreover, if any state UT is using their own digital platform or app for early screening and identification CWSN, may intimate to the department along with the detail of the coverage. तो ये सभी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा ऑल स्टेट एंड यूटीज को एड्रेस किया गया है, और साथ ही साथ डॉक्टर अमरिंदरा पी बेहरा जी जो जॉइंट डायरेक्टर साइट NCRT के हैं, उनको भी इसके बारे में एड्रेस किया गया है। अब हम देखते हैं दूसरा लेटर, जो कि हमारा सभी हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद को भेजा गया है। तो इसमें कोऑर्डिनेटर ID फॉर स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर HSSPS पंचकुला की तरफ से भी ये लेटर जारी कर दिया गया था, ऑल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर DPCs को हरियाणा के अंदर,
सब्जेक्ट है रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन अर्ली स्क्रीनिंग ऑफ CWSN एंड प्रशस्त ऐप। ये 26/4/2023 और 1/5 का लेटर इसमें मेंशन है। जैसा कि पहले लेटर का रेफरेंस इसमें दिया गया है, तो वही सेम बात इसमें लिखी है कि जो अंडर रेफरेंस है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इंटीमेटेड दैट प्रोसेस इज डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग चेकलिस्ट फॉर स्कूल मोबाइल ऐप कवरिंग 20 डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज पर द RPW एक्ट। ये सारी बात उस लेटर में लिखी गई थी, उसी को ही आगे इसको फॉरवर्ड किया गया है। तो प्रशस्त ऐप इज एन अर्ली डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग चल मोबाइल ऐप विच इज़ वेरी यूजफुल टू जनरल टीचर एंड स्पेशल टीचर ड्यूरिंग अर्ली स्क्रीनिंग process of children in schools. There are two parts of Prashast app. Part 1 for general teachers and part 2 is for special teacher. You are therefore requested to direct all the general teachers as well as special teachers to download the Prashast app so that maximum coverage of children for early screening of CWSN through Prashast app is as well as for timely conduct of medical assessment camp and use the app for early identification of the student having any kind of disability. तो ये सभी ऑल BRC कम प्रिंसिपल ऑफ ID सेंटर्स को किया गया है हरियाणा में, ऑल प्रिंसिपल हेडमास्टर हेड टीचर्स को ये किया गया है लेटर सर्कुलेट, और ऑल स्पेशल टीचर वर्किंग अंडर ID को भी ये लेटर जारी किया गया है। इसी की आगे निरंतरता में हमारे सभी DPC समग्र शिक्षा की तरफ से भी ये लेटर जारी कर दिया होगा, लेकिन ये कैथल का एक लेटर है जिसमें सभी खंड शिक्षा अधिकारी सब BO कम BRC सभी ID प्रिंसिपल्स को ये एड्रेस किया गया है 5/5/2023 को। ऑनलाइन ओरिएंटेशन सेशन प्रशस्त ऐप के बारे में इसमें बताया गया है कि उपरोक्त विषय पर लिखा जाता है कि प्रशस्त ऐप पर एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन सेशन 8/5/2023 समय 11 से 12 बजे दोपहर तक होगा, जिसमें सभी ID प्रिंसिपल्स को भी स्कूल मुखिया स्पेशल अध्यापक इस सेशन को अटेंड करेंगे। सेशन की गाइडलाइन व लिंक पत्र के साथ संलग्न है। इस कार्य को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी सभी स्पेशल अध्यापकों की है। उनके अपने खंड में सभी स्कूल मुखिया सेशन अवश्य अटेंड करें ताकि प्रशस्त ऐप पर वर्ष भर होने वाले कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो इस तरह से ये लेटर सभी को जारी कर दिया गया और इसका जो लिंक है वो आप सभी को व्हाट्सएप के मैसेज के ज़रिए आप भेज दिया जाएगा ताकि आप उसको अटेंड कर सकें। तो अगर हम थोड़ा सा ऐप के बारे में जानकारी कर लें तो इसका ऐप का नाम है प्रशस्त ऐप प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल। तो इसमें सबसे पहले वही बात बताई गई है कि प्रशस्त ऐप किस तरह से डाउनलोड करना आपने। उस प्रशस्त ऐप का लिंक टू इंस्टॉल प्रशस्त ऐप है। इसमें दिखाया गया है कि माई सर्वे है, प्रोफाइल अपडेट्स, ई बुक अबाउट प्रशस्त ऐप और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आपको ये इस तरह से आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी। इसी सेकंड जो स्टेप है इसका इंस्टॉलिंग प्रशस्त ऐप करने के बाद तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप इंस्टॉल इसको कर सकते हैं। NCERT के द्वारा ये ऐप बनाई गई है। तो सर्च प्रशस्त ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर, क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन, क्लिक ऑन अपॉन बटन टू यूज़ द ऐप, रजिस्टर साइन अप अकॉर्डिंग योर डेजिग्नेशन। तो उसी तरह से आप जैसे अफसर ऐप पे लॉगिन करते हो, समीक्षा ऐप पे लॉगिन किया आप लोगों ने, उसी तरह से आप इस पर भी अपने एक ID जनरेट कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है इसमें रजिस्ट्रेशन एट प्रशस्त ऐप। किस तरह से आप इसमें अपने आप को रजिस्टर करेंगे। इसमें दो दिखाया हुआ है, एक लॉगिन है जिसमें जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं वो लॉगिन करते हैं, जो जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया वो नए यूज़र के रूप में रजिस्टर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो रजिस्टर एज न्यू यूज़र करेंगे। तो उसमें आप देख रहे हो इसमें बटन दिखाया गया, फिर वो दोबारा इसमें दिखाया कि रजिस्टर विद गूगल करना चाहते हो या रजिस्टर विद याहू करना चाहते हैं, रजिस्टर विद ईमेल, आपकी चॉइस है कि किस तरह से आप करना चाहते हैं। तो इस तरह से करने के बाद तो प्रिंसिपल हेड मास्टर मस्ट यूज स्कूल ईमेल ID टू क्रिएट अकाउंट ऑन प्रशस्त ऐप। ये चीज़ का ध्यान रखा जाए कि जो हेड है स्कूल के टीचर अपनी उस मेल से कर सकते हैं, बट प्रिंसिपल्स और हेड मास्टर स्कूल मुखिया के लिए ज़रूरी है कि वो अपने स्कूल की मेल ही इस पर क्रिएट करें, उसके माध्यम से आप रजिस्टर करें इसमें। चौथा स्टेप है इसमें यूज़र ऑफ प्रशस्त ऐप। किस तरह से आप यूज़ करोगे। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, मेल, टीचर्स, प्रिंसिपल, स्पेशल एजुकेशन, जिसमें भी आपने टिक किया है तो उसको आप टिक करेंगे एक ऑप्शन में इसमें देना। टीचर कैटेगरी है इसमें, प्रिंसिपल हेडमास्टर की कैटेगरी और स्पेशल एजुकेटर, 3 के लिए ये मेनली ऐप तैयार की गई है। इसी तरह से अगर हम 5वें पॉइंट पे चलें, स्क्रीनिंग बाय ऑल टीचर्स एट द प्रशस्त ऐप।
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐड स्टूडेंट, स्टार्ट सर्वे पार्ट 1 और सेव और सबमिट द सर्वे। जब आप ऐड स्टूडेंट पे बात करेंगे तो नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एनरोलमेंट नंबर, क्लास, सेक्शन, फादर नेम, मदर नेम, ये सारा कुछ आ जाएगा। तो उसमें ऐड करने हैं आपको पहले अपने वो बच्चे जो कि CWSN बच्चे हैं आपके पास। उसके बाद एक सर्वे आएगा आपके सामने, स्टार्ट सर्वे उसको करेंगे। पार्ट 1, टीचर शुड केयरफुली रीड ऑल स्टेटमेंट क्वेश्चंस एंड चेक ओनली दोज बिहेवियर दैट आर एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट। तो उनको ध्यान में रख के ही अपने सर्वे पूरा करना है। इसी प्रकार सेव और सबमिट द सर्वे, ओनली द सबमिटेड सर्वे विल बी असेस्ड बाय द स्पेशल एजुकेटर। तो वो फिर उसके पास चला जाएगा, स्पेशल एजुकेटर उसका असेसमेंट करेंगे। इसके बाद जो ऑटो वेरिफिकेशन ऑफ स्कूल हेड्स है, तो उसके बाद स्कूल हेड्स भी इसको वेरिफिकेशन करेंगे। प्रिंसिपल एंड हेडमास्टर आर ऑटो वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ यूडाइज डाटा ऑफ स्कूल। स्कूल हेड मस्ट क्रिएट देयर अकाउंट यूजिंग सेम स्कूल एंड ईमेल आईडी विच इज़ गिवन इन यूडाइज डाटा ऑफ द स्कूल। पहले बताया गया है। तो इसमें देख रहे हो आप ऑटो वेरिफिकेशन है और वेरीफाई जो है बटन इन प्रोफाइल। तो अगर आप टेस्ट प्रिंसिपल का करते हैं तो यहाँ पे मेल आ जाता है, प्रिंसिपल हेडमास्टर का डेजिग्नेशन, फ़ोन नंबर आ जाता है, यूडाइस कोड जाता है, स्कूल का नाम आ जाता है और स्टेट का नाम आ जाता है। तो इस स्टेप के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ टीचर्स एंड स्पेशल एजुकेटर कैसे करेंगे। उसमें आफ्टर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल और हेडमास्टर, टीचर्स एंड स्पेशल एजुकेटर, वेरिफिकेशन कैन बी डन बाय द प्रिंसिपल एंड HM। इसमें चेक सेल्फ वेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, वेरिफिकेशन ऑफ टीचर्स एंड स्पेशल एजुकेशन का ऑप्शन है और चेक वेरिफिकेशन स्टेटस आएगा इसके अंदर। जब आप इन चेक वेरिफिकेशन पे जाएंगे तो इन प्रोफाइल सेक्शन वेरिफिकेशन स्टेटस इज शोन विद द ग्रीन टिक नियर द नेम। तो उसमें आप देख रहे हो नेम के साथ उसमें टिक किया हुआ है। और जब आप वेरीफाई करते हैं, डू यू वांट टू वेरीफाई दिस यूजर, तो उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसी से वेरिफिकेशन टीचर स्पेशल यूजर, क्लिक ऑन द टीचर स्पेशल एजुकेटर बटन एट लैंडिंग पेज एंड क्लिक वेरीफाई इफ गिवन डिटेल इज ऑफ ए टीचर्स, दैट इज नेम, ईमेल एंड फोन नंबर एक्सेट्रा। चेक वेरिफिकेशन स्टेटस, आफ्टर डूइंग वेरिफिकेशन देयर विल बी शोन वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। अगर हम 8वें पॉइंट पे चलते हैं तो एडिंग स्कूल बाय स्पेशल एजुकेटर। तो इसमें जो स्पेशल एजुकेशन के लिए ये पॉइंट है कि मैं एड मल्टीपल स्कूल टू दी डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग पार्ट 2। तो वो इसमें स्पेशल एजुकेटर ही करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ऐड स्कूल फॉर स्क्रीनिंग, वेट फॉर वेरिफिकेशन फॉर स्कूल हेड। तो ओनली सर्वे लिस्ट स्क्रीन, ऐड स्क्रीन बटन इज गिवन एंड बटन टू ऐड स्कूल यू शुड इंसर्ट यूडाइस कोड ऑफ द स्कूल। तो ये इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे इस स्लाइड में दिखाया गया तो वैसे ही आप इसको कर सकते हैं। No more point discuss screening part 2 by special educator. After verification of the school principal, HM, special educator may start disability screening part 2 of the student. तो इसमें सारी ये कैटेगरी आ जाती है डिसेबिलिटी, जो 21 कंपोनेंट की बात पीछे दोहराई गई थी। ओपनिंग ऑफ द स्टूडेंट लिस्ट, ऑन क्लिक सर्वे, लैंडिंग स्क्रीन, स्पेशल एजुकेशन कैन सी लिस्ट ऑफ स्कूल, क्लिक ऑन द स्कूल एंड यू विल रीच क्लास वाइज लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट। Doing student screening part 2 on student list, special educator can view survey part 1 and can choose a suspected disability according after filling observation and checking restored behavior the survey can be submitted। तो इसको आप सबमिट कर देंगे। फिर इसमें परसेस लाइव डैशबोर्ड आ जाएगा आपके सामने कि रजिस्टर्ड यूजर्स कितने हैं, स्टूडेंट कितने इसमें एनरोल हो चुके हैं ऐप के ऊपर, और स्कूल टोटल स्कूल यूजिंग पर कितने स्कूल इसको ऐप को यूज़ करें, टीचर कितने इस ऐप को यूज़ कर पा रहे हैं। तो उसमें स्टेट वाइज यूजर्स का डाटा भी आ जाएगा, इसमें ग्राफ आ जाएगा। प्रिंसिपल हेडमास्टर साहब कितने यूज़र हैं इसके, स्पेशल एजुकेटर कितने यूज़ कर रहे हैं, सर्वे पार्ट 1 किसने पूरा किया है स्क्रीनिंग का, और स्क्रीनिंग जो सर्वे पार्ट 2 वो किसने पूरा किया। यहाँ पे ये पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर ये पिछले रिपोर्ट के अनुसार देखें तो स्टेट वाइज जो यूज़र की स्ट्रेंथ इसमें दिखाई गई, पूरे स्टेट वाइज की दिखाई गई। अगर हम हरियाणा की इसमें बात करते हैं तो हरियाणा इसमें जो है 21 नंबर पे है, और 21 नंबर में उनके जो यूजर्स हैं हरियाणा के अंदर वो 356 इसमें दिखाए गए हैं। तो हम सभी ने मिलकर इस पूरे मुहिम में हमारा पूरा 100% डाटा हमारा पूरा इसमें चढ़ना चाहिए, ओके होना चाहिए। क्योंकि मान के चलते हम लोग कि इतने ज़्यादा हमारे स्कूलों में CWSN बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर जहाँ पे हैं तो उनकी फैसिलिटी के लिए ऐप तैयार की गई है ताकि उन बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और इसमें जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं हम लोग टीचर्स हैं, हमारे मुखिया हैं स्कूल के, हेडमास्टर साहब HT हैं या फिर प्रिंसिपल साहब हैं, उनकी जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
ताकि हम एक समाज के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक रहे, और हमें उन सभी इनिशिएटिव को पूरा करना चाहिए जो कि हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा या हायर अथॉरिटी के द्वारा हम तक पहुंचती हैं। तो जब हम इन चीज़ों में पूरा 100% और अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही बहुत अच्छे से आंकड़े जो है ना सामने निकल के आ जाते हैं। और हमारा सबका ये प्रयास रहना चाहिए कि हम लोग इस मुहिम में, इस इनिशिएटिव में बढ़ चढ़ कर भाग लें। इसमें ज़्यादा किसी भी प्रकार की नेगलेंसी ना हो। सभी प्रिंसिपल, टीचर मिल के ये काम करें। अगर किसी को परेशानी आती है तो अपने कोई जो टेक्निकल सपोर्टिव इसके अंदर होते हैं रोल, उनके भी आप संपर्क कर सकते हैं। और मैक्सिमम तो जानकारी पढ़ने के बाद ही आती है। जब आप पूरी लेटर्स को ध्यान से पढ़ते हैं, उसकी समझ बनाते हैं, कोई ऐप आप जब डाउनलोड करते हैं तो उस ऐप पे क्या से कैसे काम किया जाता है, तो जब तक आप उससे गो थ्रू नहीं होंगे तब तक उस ऐप के बारे में भी अच्छे से आप नहीं जान पाएंगे। तो निवेदन आप सभी से ये है कि अच्छे से काम करना हमने इसके ऊपर, इस इनिशिएटिव पे। और मुखिया हो या स्कूल टीचर हो या स्पेशल एजुकेटर हो, उन सब की ये भूमिका रहती है कि इसमें अच्छे से अच्छा हम काम करें। और डिपार्टमेंट जो हमसे आशा करता है, जो हमें से उम्मीद लगाए बैठा है डिपार्टमेंट, उस उम्मीद पर हम 100% अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ट्यूटोरियल यहाँ पे बंद करता हूँ। आप सभी को देखने जो इस ट्यूटोरियल के माध्यम से जो जानकारी मिलेगी, आशा करता हूँ कि आप उसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठाएंगे और इसमें हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कोशिश करें सब्सक्राइब करने की, अगर आपको अच्छी लगती है तो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।